Good morning to all. How are you? I hope that all of you fine. Myself Rekha from Surya School Rewadi. Today I will teach lesson number 2, the award of snow. Award means place where snow found and which place snow found. The Himalaya region found the snow and they covered throughout the year. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया. ये एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है, साउथ की तरफ जब आते हैं वहाँ पाए जाते हैं. मैनी स्ट्रीम्स, रिवर, नैरो वैलीज आर फाउंड हियर. द हिमालय रेंजेस कवर द एंटायर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. हिमालय रेंजेस जो है इंडिया का जो टोटली नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो हिमालय रेंजेस से पूरा तरह से कवर है. फ्रॉम लद्दाख टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश. लद्दाख से भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ आते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, वहाँ तक ये रेंजेस फैली हुई हैं. नाउ इट्स लोकेशन. हिमालय स्ट्रेच टू अबाउट 2400 किलोमीटर पासिंग थ्रू नॉर्दर्न इंडिया, साउथर्न चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान. तो हिमालय की रेंजेस जो है इन कंट्रीज तक फैली हुई हैं. इस ब्रिथ फ्रॉम 150 to 400 किलोमीटर्स तक हैं. एंड द हिमालय एनक्लोज 9 ऑफ द हाइएस्ट पीक ऑफ द world. Now its climate. Its climate is very cold. The temperature decreases as we go higher and the atmospheric conditions become extremely cold. तो जैसे ये हिमालय जो है इसके मानसून पर भी इफेक्ट डालता है, रेनफॉल पैटर्न पर भी इफेक्ट डालता है. द स्लोप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो एंड आइस. Cold winds blow from the high mountains. Now next is डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न हिमालयस एंड द ईस्टर्न हिमालय. तो वेस्टर्न हिमालयस कवर्ड विद स्नो एंड आइस, बट ईस्टर्न हिमालय दे आर नॉट स्नो कवर्ड बट रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. वेस्टर्न हिमालय हैव हाईएस्ट पीक बट ईस्टर्न हिमालय दे आर लो इन हाइट. Now next is physical features of the Himalaya. The Himalayan ranges of mountain is divided into 3 parallel ranges. First is the Greater Himalaya. Greater Himalaya is known as Himadri, and next is the Lesser Himalaya. Lesser Himalaya is known as Himachal, and last is Outer Himalaya. Outer Himalaya known as Shivalik. The Greater Himalaya. So I discuss Greater Himalaya. It is known as Himadri. हिमाद्री हिम यानी कि बर्फ़, यानी कि वो हिमालय ग्रेटर हिमालय जो पूरी तरह से बर्फ़ से कवर्ड रहता है और वाइट बेडशीट की तरह दिखाई देता है, जैसे इसके ऊपर वाइट चादर आई है. दे आर हाईएस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालय. तो ग्रेटर हिमालय जो है हिमालय की हाईएस्ट रेंज में आता है. इट्स हाइट्स 6000 मीटर टू 8000 मीटर एंड देयर पिक्स आर ऑलवेज कवर्ड बाय स्नो एंड हैंस दे आर नेम्ड हिमालय विच मीन्स अवार्ड ऑफ स्नो. The highest mountain peak in the world. So which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest. So Mount Everest lies between Nepal and China border and its height 8848 meter. Now next is Karakoram ranges. तो ग्रेटर हिमालय की एक रेंजेस और आती हैं कराकोरम. It is lies in Ladakh. Mount Godwin Austen and short name is Mount Ketu. It the highest peak in India. इंडिया में हाईएस्ट पीक किसकी है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन की है. बट माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड नंबर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट नंबर इज माउंट एवरेस्ट एंड सेकेंड इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन. एंड अदर हाईएस्ट पीक नंदा देवी, कंचनजुंगा, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा एक्सेट्रा. The Great Himalaya, because of their altitude, contains most of the Himalaya glacier. So many glaciers are found here, and most important glacier are Gangotri and Yamunotri. तो ग्लेशियर जो है क्या है? What is the glacier? Glacier is a moving mass of ice. आइस के बहुत सारे ढेर होते हैं जो मतलब माउंटेन से स्लॉप होकर नीचे की तरफ आते हैं. In summer season, the ice melt and moves down the slope of the mountain as river, or it's originate the river. And valley is found here. So what is a valley? The land between
Two hills of mountain. It's called valley. Its shape is U and V shape. Now, second is the Lesser Himalaya. It's known as Himachal. The Lesser Himalaya, less than height than Greater Himalaya. Its height 3,700 meters to 4,600 meters. The Himalaya is very beautiful stretch of mountain. So Lesser Himalaya is very beautiful mountain region, and we have found a waterfall, meandering rivers, fertile valley, lush green grassland, and luxury forest also. And tourists attract to these places, and famous hill stations are found here like Shimla, Kullu, Manali, Nainital, Mussoorie, etc. Next, third is the Outer Himalaya. It's known as Shivalik. The Outer Himalaya lies between the Lesser Himalaya and Gangetic Plain with an average height and 900 meters and 1200 meters. The southernmost range is often referred to as Shivalik Range. It unfolds flat valley known as Dune. तो आपको पता है कि वैलीज की जो शेप क्या आती है, यू एंड वी शेप है, ठीक है। तो जो ग्रेटर हिमालय में पाई जाती हैं, बट आउटर हिमालय में फ्लैट वैलीज पाई जाती हैं जिसको हम डून्स बोलते हैं। तो देहरादून इज द प्लेस, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, इज वन सच प्लेस वेयर फाउंड दिस टाइप वैलीज। एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक इज अ मर्शी लैंड। तो मर्शी लैंड इज फाउंड हियर, यानी कि दलदली थोड़ी सी वैसी लैंड होती है जिसको कहते हैं तराई। एंड डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर, वैलीज, वाटरफॉल एंड पॉसेस एक्सेट्रा। Now, eastern branches. The Himalaya bend toward the eastern end of India, forming many hills known as Purvachal. तो हिमालय जो है हमारा ईस्टर्न इंडिया की तरह के जो एंड पार्ट्स है वहाँ पे थोड़ा सा इसका हिल पार्ट्स आ जाता है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल मीन्स, पूर्वा मीन्स ईस्ट एंड आंचल मीन्स माउंटेन। तो इसका मीन हो गया ईस्टर्न माउंटेन, यानी कि ईस्टर्न टाइप जो है इंडिया का पार्ट्स, वहाँ पे जो हैं ये पूर्वांचल हिल रेंजेस पाई जाती हैं। लो हिल्स रेंजेस हैं बिटवीन 1800 मीटर्स एंड 3000 मीटर्स इन हाइट, एंड गारो, खासी, जंतिया, नागा एंड मिजो हिल्स ये पाई जाती हैं यहाँ पे पूर्वांचल में। एंड दिस रीजन gets heavy rainfall during the monsoon season and hence covered with thick forest. Now, life of the people. अब इनकी लाइफ किस तरीके से होती है जो पीपल्स हिमालय रीजन में रहते हैं। तो यू नो दैट कि वेरी कोल्ड क्लाइमेट हियर, पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स मोस्टली मेड ऑफ वूल एंड सिल्क विच कीप दैम कंफर्टेबल इन द कोल्ड weather. Agriculture, animal rearing, handicrafts are the main occupations in this region, and there are many number of orchards found here. People live in houses with sloping roof. यहाँ पे जो है जो घर बने होते हैं स्लॉपिंग रूफ के बने होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल। क्योंकि अगर फ्लैट रूफ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगी, वाटर कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन और माउंटेन रीजन में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, स्नोफॉल भी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो रूफ बनाते हैं स्लॉपिंग रूफ बनाते हैं पीपल। नाउ आई विल डिस्कस द स्टेट इन हिमालय रीजन। तो फर्स्टली जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर पीपल नॉन एज कश्मीरी, दे स्पीक कश्मीरी लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज, एंड दियर ट्रेडिशनल ड्रेस इज लॉन्ग क्लॉक। ये लॉन्ग वुलन कुर्ता है जिसको हम कहते हैं फिरान। ड्यूरिंग विंटर दे क्ले पॉट यूज़, क्ले पॉट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कांगरी, कांगरी बोलते हैं इसको। दियर स्टैपल फूड इज़ राइस, दे ग्रो ग्रीन टी ग्रो करते हैं यहाँ पे लोग, और एक स्पेशल टी और बनाते हैं जिसको कहते हैं कहवा। तो यहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पीपल्स हैं वेरी गुड एट हैंडीक्राफ्ट्स। कश्मीरी वुलन कारपेट्स एंड शॉल आर वर्ल्ड फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल्स पाई जाती हैं, जनजातियाँ यहाँ पे। दे रियर शिप फॉर वूल, ये भी क्या करते हैं, वूल के लिए शिप पे डिपेंड रहते हैं। एंड वुमेन वियर ड्रेस कुर्ता, कुर्ता पहनते हैं यहाँ पे और विथ लॉन्ग स्कर्ट के साथ।
इनका जो कुर्ता होता है लॉन्ग स्कर्ट के साथ होता है, और जिसको हम चूड़ीदार भी कह सकते हैं। एंड कवर दियर हेड्स विद स्कार्फ, और यहाँ की जो वुमेन है अपने हेड्स को कवर करती हैं, उसको कहते हैं दाजू। एंड मेन वियर पाजामा, कुर्ता एंड कैप। यहाँ के जो मेन जो कैप वियर करते हैं उसमें जो है एम्ब्रॉयडरी होती है, कलरफुल बॉर्डर बना होता है कैप पे, कभी आप देखेंगे तो दैट इज कैप इज कॉल्ड हिमाचली कैप बोल सकते हैं या कुल्लू कैप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिक्किम। तो वेयर इज सिक्किम लाइज? तो सिक्किम लाइज बिटवीन टू कंट्रीज, नेपाल एंड भूटान के बिल्कुल बीच में आता है ये। एंड क्राउन बाई तिब्बत ऑन टॉप, यानी कि इसके ऊपर तिब्बत है, तो यानी कि उसका ताज पहना हुआ है इसने। हेंस द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू 3 मेन ट्राइब्स, जातियाँ पाई जाती हैं। द वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट, यहाँ की जो विमेंस हैं लॉन्ग स्कर्ट पहनती है जिसको बॉकू बोलते हैं, और कुर्ता भी पहनती हैं, बट इसके साथ साथ वो ज्वेलरी भी पहनती हैं, और वो ज्वेलरी बीड से बनी होती, कलरफुल बीड्स स्टोन होते हैं। द पीपल ऑफ पूर्वांचल हिमालय वी ब्यूटीफुल वूलन गारमेंट्स बनाते हैं पूर्वांचल हिल रेंजेस के। एंड नागालैंड पीपल जो हैं मोस्टली हंटर होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं। एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और फार्मिंग तो इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन। कहाँ? जहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैलीज है वहाँ के लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग। टी इज़ अ प्रिंसिपल क्रॉप्स है यहाँ पे। द पीपल ऑफ हिमालय रीजन आर हाईली स्किल्ड इन मेकिंग बैम्बू एंड कैन प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी ये एक्सपर्ट हैं। और यू नो दैट कि हाँ ब्यूटीफुल वैलीज फाउंड होती हैं, रिवर्स हैं, कंफर्टिंग क्लाइमेट्स कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ वन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन आवर कंट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय वाई इम्पोर्टेंट? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड, ये ठंडी हवाओं से बचाते हैं जो कहाँ से आती हैं? ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। दे एंट्रप द मानसून विंड्स विच गिव अस रेन, ये उन मानसून विंड्स को पकड़ के रखते हैं जो रेन करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दे आर द सोर्स ऑफ द नेवर एंडिंग रिवर, ये रिवर का भी सोर्सेस हैं क्योंकि रिवर जो हैं हिमालय रीजन से ही ऑरिजिनेट होती हैं, जो प्लेन्स में प्लेट्यूज में सभी जगह फ्लो कर रही हैं। तो विच आर यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और हिमालय का इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है? स्टैंड एंड नेचुरल बैरियर है, ये हमारा एक नेचुरल बैरियर है सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, जो हमारे इंडिया को अलग रखता है। नाउ नेक्स्ट इज पासेस। पासेस, व्हाट इज पासेस? माउंटेन पास इज रूट, एक रास्ता है जो माउंटेन से निकल के आता है, और दैट आर यूजफुल इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन विद अदर कंट्री। तो यहाँ पे जो कुछ पासेस हैं जैसे शिपकीला, नाथुला, बोलन एक्सेट्रा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।